Approx monthly income from social media. Are you seeing someone? Are you dating someone? How did your parents agree to you leaving your well-paid job? Life with job versus life with content creation, pros and cons. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So it's been a long time since I did like a Q&A video. बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, 2-4 महीने. And randomly one day I was like, I have to reconnect with my audience. They need to know what's going up with me. So मैंने Instagram पे story रखा था that if you have any questions you can shoot those questions, and मैंने सबका ऐसे screenshot लेके रखा है. So I'm gonna answer those questions, but I'm gonna also try out some new makeup. मेरे पे काफी सारा नया सामान मैंने मंगाया, वो हम try भी करेंगे साथ साथ. I'll answer your questions also so that it becomes like a इंटरैक्टिव वीडियो. द फन फैक्ट इज दैट मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसे पढ़ा भी नहीं है, लाइक बहुत ही ध्यान से थोड़ा थोड़ा बस मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने आईपैड पे मैंने उसको एयर ड्रॉप कर दिया. एंड अभी मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ूंगी क्वेश्चंस भी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. स्किन प्रेप मेरा हो गया है. आई एम गोना जस्ट सेट माय माइक अप एंड वी विल डिग इन. मेरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ आज, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो आप चेक कर लेना. सो फर्स्ट थिंग मैंने मंगाई है ये डॉट.इन की सनस्क्रीन. दिस इज अ टिंटेड सनस्क्रीन एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और मतलब बहुत सारे लोगों को मैं यूज करते देख रही थी, and I had to order it for myself. Let's take our first question with it. One mistake you would avoid as a budding creator. This question has been asked by Purvi. Hi Purvi. So as a budding creator, one thing that I would avoid is not being me, because जब मैं आगे 4-5 साल बाद वो वीडियोस देखूंगी और मेरी आवाज मैच नहीं करेगी. You know what I'm saying? Like जब भी हम नए नए होते हैं and then when we are starting content creation for the first time, हमें लगता है हमें perfect होना है. सब देखेंगे, दोस्त रिश्तेदार, तो हमें एकदम ऐसे धड़ाधड़ इंग्लिश बोलनी है, जो भी मतलब what I'm saying. So when you watch those things after 3-4 years, you're gonna cringe so hard, and उससे ना एक relatability factor भी खत्म हो जाता है, because वो बन के बात करना होता है. मैंने भी अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में थोड़ा ऐसे एफर्ट डाले थे बात करने में कि आई हैव टू बी परफेक्ट. एक भी इंग्लिश का वर्ड इधर उधर हो गया तो आई यूज्ड टू रीटेक, एंड वो बहुत ही नेचुरल है, बिकॉज हमारा काम नहीं है रोज ऐसे कैमरे से बात करना, एंड गलतियां होती हैं. लाइक यू कैन फंबल, मैं भी बहुत फंबल करती थी. सो व्हाट आई हैव सीन इज यू हैव टू बी योरसेल्फ. मतलब जैसे आप हो ना वैसे ही बात करो, ताकि बहुत ऐसे when after years and years when you rewatch your content and stuff, you will not feel that gap. So that's what I think I will avoid. And one more thing is that when I used to post my pictures on Instagram वगैरह, I used to make sure every inch is perfect. Like मेरे अगर टी शर्ट का कलर भी थोड़ा ऑफ हो रहा है ब्राइटनेस के चक्कर में, तो मैं उसको एडिट करती थी. आई यूज्ड टू एडिट अ लॉट, बट नाउ इट्स लाइक आई जस्ट लेट इट बी कि भाई ठीक है, जो भी है होता है. नोबडी इज गोना पे दैट मच अटेंशन जितना मैं कर रही हूँ. सो दैट इज वन थिंग दैट आई अवॉइड. बाय द वे, दिस सनस्क्रीन इज सो डैम गुड. शेड मैच भी एकदम परफेक्ट है. I got it in the shade 03 and amazing. What do you feel after being independent girl, and what are the things that make you kept going? This is asked by Vaishali. Hi Vaishali. Being an independent girl changes a lot, like a lot. I cannot even put it in words, like how do I feel. It's always के हाँ भाई, मतलब मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा. And the kind of mental peace that you get from independence is unreal, and I feel like every girl should be independent and they should at least experience those things. Editing tips, YouTube shorts. So this is a question that I get mostly very many times, but मैं ना YouTube comments पे reply कर देती हूँ. I use InShot. लाइक मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज, मेरे शॉर्ट फॉर्म वीडियोज सब मैं InShot यूज करती हूँ मैं. इट्स अ वेरी इजी ऐप. आई हैव द पेड वर्जन ऑफ द ऐप, सो इट्स अ वेरी गुड ऐप. Okay, moving on to the concealer. This is the Insight concealer. This is super affordable. I guess 100 rupees का आता है, and I've never used it. I got it in the shade beige, and this is the first time I'm using it. इसकी भी मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है, because ये ना बहुत hyped up है. I think the shade match is pretty good. Approx monthly income from social media. See, this is the pro and the con of social media. किसी महीने you can make 10 rupees, किसी महीने you can make 100 rupees. Example ले रही हूँ. And it's not fixed. So sometimes it's like कि अगर कोई peak season है तो the work is a lot and everything. And even if अगर आपको collabs मिल रहे हैं, payment terms are 45 to 60 to 90 days. So you don't know कि payment कब आने वाला है. And
इवन आफ्टर 90 डेज या जो भी तुम्हें फॉलो अप लेना पड़ता है, सो इट्स लाइक तुम्हें पता ही नहीं कि किस महीने में तुम्हारा पेमेंट एक्चुअली आने वाला है. सो इट्स अ वेरी डाइसी थिंग टू से कि भाई अप्रॉक्स कुछ नहीं होता. इफ देयर इज अ सर्टेन लेवल दैट यू रीच कि भाई इतने ब्रांड कोलैब्स तो आने ही हैं, देयर इज दिस प्रोफाइल दैट यू हैव बिल्ट कि भाई तुम्हारा तगड़ा प्रोफाइल है, तुम्हारे पे ब्रांड्स आ रहे हैं, तब तुम अच्छा खासा मतलब लाखों लाखों तक भी कमा सकते हो. आई नो आप लोग सोचते हो कि सब ऐसे ही बोलते हैं, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ, बिकॉज ये कोई कंफर्म होता ही नहीं है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कब आपको पेमेंट मिल रहा है, क्या एजेंसी है. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल? आई स्टार्टेड इन 2020 एंड मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था 2021 मिड में, या फिर 1.5 ईयर लगा था मेरे को मोनेटाइज करने में. बिकॉज मैंने जब मोनेटाइज करा था चैनल तब चाहिए रहते थे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स. तब उस टाइम पे शॉर्ट्स नहीं थे. सो मेरे को 1-1.5 साल लग गया था. कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? कॉन्फिडेंस की बात मैं करूँ तो कॉन्फिडेंस तो भाई वो तो टाइम के साथ ही आता है. यू हैव टू शो अप. लाइक अगर आप एक वीडियो बना के 1 महीना गायब रहोगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला. यू हैव टू शो अप, गलतियां करो, वीडियोस पोस्ट करो, टॉक टू द कैमरा, रीड बुक्स. अगर आपको इंग्लिश में वर्क करना है, यू कैन वॉच वेरी इजी वाले सीरीज भी देख सकते हो, फ्रेंड्स वगैरह वॉच कर सकते हो. दिस आई हैव रिकमेंडेड अ लॉट बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय 12th मैं फ्रेंड्स देखती थी एंड वहाँ से मेरी ना वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी. मतलब पहले मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती थी, लाइक ठीक थी मेरी इंग्लिश, नॉर्मल थी. बट आफ्टर लाइक 11th-12th जब मैंने फ्रेंड्स वगैरह देखना शुरू करा, कॉलेज में मैं आई और यू नो बुक्स पढ़ने थोड़े बहुत शुरू करे, तब थोड़ा ऐसा हुआ. सो कॉन्फिडेंस तो भाई ऐसे ही आता है कि अगर आपको इंग्लिश वगैरह पे वर्क करना है, आई विल रिकमेंड यू वॉच सम शोज और रीड बुक्स, सिंपल वाले. एंड इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट वैसे, लाइक if your English is good, if you want to be confident like that, then you have to show up. Like you have to talk to the camera, you have to face it basically, and it comes with time. What have you studied? तो 10th के बाद मैंने PCM लिया था and then post that I did BTech in IT. How do you plan your content for Instagram and YouTube? So content is basically divided into 2 categories, which is brand work and personal content. For example, November. तो अगर मुझे पता है कि इतना fixed मेरा brand work है नवंबर में, first I write it down on a diary कि भाई ये है. I always write, मतलब मुझे बिना लिखे मेरे से काम नहीं होता, लैपटॉप पे, एक्सेल पे नहीं. आई नीड पेन एंड पेपर. तो सारा एक बार ब्रांड वर्क लिख लिया मैंने, उसके बाद मेरा पर्सनल कंटेंट जो भी है, सो मैं डिसाइड करती हूँ कि यार ओवर भी तो नहीं हो रहा, लाइक एक महीने में बहुत ज़्यादा भी तो कंटेंट नहीं हो रहा. और मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैं ब्रांड वीडियो कर रही हूँ तो आई वोंट डू ब्रांडेड वीडियोज लगातार, लाइक एक के बाद एक. तो मैं बीच में अपना पर्सनल कंटेंट भी प्लान करती हूँ. तो इस हिसाब से आई प्लान आउट ऑल ऑफ माई कंटेंट फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. ओके, हाउ डिड योर पेरेंट्स अग्री टू यू लीविंग योर वेल पेड जॉब and starting content creation and doing content creation? So this, I don't think I've ever like talked in depth about this, but I used to work in IBM. हाँ, 2 साल मैंने काम करा है वहाँ पे, but content creation में 2020 से कर रही थी, ठीक है. So we very well understand that this is a job and this content creation thing is a business, and मैं ये 5 साल से कर रही हूँ. So when I used to work, it used to get too overwhelming. Like मेरा ध्यान content creation पे भी था proper and मेरा job पे भी था. But there came a time where I was like, भाई मैं या तो पागल हो जाऊंगी या तो मुझे एक चीज को छोड़ना पड़ेगा. And the option was pretty clear because ये मैं 5 साल से कर रही हूँ. And businesses are like that कि जितना मेहनत आप कर सकते हो, the more you can get. And jobs का ऐसा रहता है कि they are fixed, you know what I'm saying. So जब मेरे दिमाग में ये choice आई कि भाई मुझे एक चूज करना है, तो द ऑप्शन वॉज प्रीटी क्लियर कि भाई नहीं, मैं कंटेंट क्रिएशन ही चूज करूंगी बिकॉज ठीक है, मुझे वो करना पसंद है एंड मुझे पता है कि मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ. एंड व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट यू नो आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस एंड मुझे ऐसा लग रहा है वैसा करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ एक्चुअली बोला ही नहीं. दे वर वेरी सपोर्टिव विद इट बिकॉज दे न्यू दैट यू नो मैं कोई चीज़ अगर आप 5 साल से कर रहे हो तो आपके घर पे पता रहता है कि what is the output and you know कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है, हमारी लड़की बर्बाद तो नहीं कर रही अपने आप को, ऐसा तो नहीं है ना. उनको तो आइडिया है ही कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ और कैसा आउटपुट है उस चीज़ का. so they were pretty chill about it कि ठीक है. बट मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मैं पूरा मतलब जिंदगी भर नौकरी नहीं करूंगी. मेरे स्टेटमेंट ये नहीं थे. मेरा स्टेटमेंट था आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब, मुझे एक बार ट्राई करके देखना है ये चीज़. तो they were like ठीक है. बट there is no forcing from them कि भाई नौकरी करनी है because they have seen me working. वो उनको दिखता है कि मैं काम करती हूँ, they know the output. so इतना कुछ मतलब है नहीं. and मैं personally बहुत content हूँ इस चीज़ से because I have this trust on myself कि मैं अपना time और energy कहाँ पे लगा रही हूँ और मैं कितना better कर सकती हूँ. so what do you do when your mind is packed with lots of stuff? so ऐसा बहुत बार होता है भाई कि मतलब बहुत दिमाग में
माइंड इज फिल्ड, लाइक बहुत भसड़ चल रही थी दिमाग में कि भाई क्या करें क्या नहीं करें. ऑन दोज डेज फर्स्टली तो मैं भाई प्लान करती हूँ कि मुझे प्रायोरिटी क्या है चीज़ें करने की, लाइक मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ, व्हाट इज द रूट कॉज, बिकॉज मेरे लाइफ में इतनी भसड़ है ही नहीं कि मैं इतना ज़्यादा घबराऊँ चीज़ों को लेकर. सो आई जस्ट फिगर आउट कि भाई मेरे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है मुझे. एंड आई एम अ वेरी लाइक मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना थोड़ी सी भी तो मेरे दिल में पता चलता है. लाइक आई कैन नॉट बी माई हैप्पीएस्ट सेल्फ व्हेन आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम इन माई हार्ट. मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट अगर मुझे कुछ तकलीफ होती है ना तो आई कैन नॉट बी वेरी हैप्पी. मतलब मेरा दिमाग ना वहीं 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 रहता है. तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है एंड हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर मान लो मेरा दिमाग स्टक है, मेरे को बहुत काम है, मेरा काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो आई स्टार्ट स्मॉल. जो छोटी छोटी चीजें हैं, एक दिन में सारा लेने से बेटर है छोटी छोटी सेक्शंस में डिवाइड करो. एंड देन आई समटाइम्स ऑल्सो टेक अ ब्रेक और दोस्तों के साथ चली जाती हूँ मिलने. सो मैं अपने माइंड को ऐसे बहलाती हूँ, बट आई डू नॉट टेक फॉर ग्रांटेड भाई कि मुझे काम भी करना है या मुझे चीजें भी जो मेरे दिमाग में चल रही हैं वो मैनेज करनी है. तो मैं मतलब अपने दिमाग को थोड़ा समझाती हूँ. आई ट्राई टू मैनिपुलेट इट कि भाई क्या दिक्कत आ रही है तेरे को, रुक जा थोड़ा. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आई रियली लाइक. दिस इज लाइफ विद जॉब versus life with content creation, pros and cons, and which one you feel is better. See, pros and cons सब में होते हैं, इसमें भी है which I have realized. So let's start with the pros of the job. But उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ. This is the Swiss Beauty का holographic eyeliner and ये मैंने ऑर्डर करा है. अब हम इसको लगा के देखेंगे. So content creation you know is a घर पे रहने वाला काम. Like it's work from home, entirely work from home. तो मुझे कभी कभी वो लगता था यार भाई के what the hell just broke. Am I being too harsh with it? तो कंटेंट क्रिएशन इज बेसिकली घर पे रहने वाला काम एंड वो कभी कभी ना इरिटेट करता है आपको कि आप ना घर पे ही बंद हो. एंड दैट हैज हैपेंड विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मुझे लगता है भाई मैं पागल हो जाऊंगी घर में, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है. आई नीड सम एयर बिकॉज ऑफिस में जाते हो आप तो 4 लोगों से मिलते हो, 4 बातें करते हो वैसा. सेकेंड थिंग इज शेड्यूल. भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. जॉब में आपका एक फिक्स शेड्यूल रहता है. जब मैं जॉब करती थी तो मुझे पता है कि मैं सुबह 8 बजे नहा के रेडी हूँ, लाइक एवरी सिंगल डे, देयर इज नो एक्सक्यूज. बट कंटेंट क्रिएशन घर से काम कर रहे हो, कभी कभी आलस आ रहा है, 8 के 10 बज रहे हैं, 8 के 9 बज रहे हैं, कभी 11 बज रहे हैं, कभी कुछ ऐसा है. सो वो एक शेड्यूल नहीं बन पाता है प्रॉपर अंटिल एंड अनलेस यू आर वेरी एडमेंट ऑन भाई के नहीं मुझे घर में भी प्रॉपर 8 बजे नहा के रेडी होना है. आई एम नॉट लाइक दैट. मेरा थोड़ा गो विद द फ्लो वाला काम है, तो वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम देता है कि मेरा ऐसा कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं है कि भाई 8 बजे उठ के नहा लेना है ऐसे करके. वो मेरा जॉब में रहता था बिकॉज देयर वाज दिस थिंग कि भाई जॉब पे पहुंचना है, बट घर पे कंटेंट क्रिएशन में इट्स फ्लेक्सिबल, राइट? सो दीज आर द pros of job and cons of content creation. Now I'll tell you the pros of content creation and not the cons of job. दुनिया में इतने लोग जॉब कर रहे हैं, कोई कॉन नहीं बताने वाली, बट मैं आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के प्रो बता रही हूँ. You are your own boss. You can experiment with your creativity. You have ample amount of time. आप कुछ भी कर सकते हो and you get free things. अगर आप किसी लेवल पे हो तो, like when you start working and you will eventually get there. And there is no छुट्टी का रोना या कुछ भी. You don't have to crib for sick leaves or paid leaves or anything like that. वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है. So yeah. What's your brother's wedding date? Is it happening in Gwalior? Please make vlogs of wedding. Okay. So I don't know if I've talked about this, but so my brother's wedding is in November, late November. See, it's nothing against anything, ठीक है? मुझे ऐसे कुछ इशू नहीं है वेडिंग डेट वगैरह शेयर करने में, बट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ नजर एंड आई डोंट वांट एनी ऐसे कुछ भी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बट द वेडिंग इज इन लेट नवंबर एंड या मतलब लेट नवंबर में वेडिंग है एंड इट्स नॉट फ्रॉम ग्वालियर. माय भाभी इज मराठी, सो शादी इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट्स नॉट फ्रॉम पुणे. It's from my bhabhi's hometown. So yeah, that is this thing. About vlogs, I am not sure about long form vlogs because I don't know यार. मतलब I can make shorts. वो तो मैंने सोच ही रखा है कि shorts तो मैं बनाऊंगी because भाई मेरे ना सगा भाई है, एक ही भाई है मेरा. एंड उसके शादी में मुझे ऐसे व्यस्त नहीं रहना कि भाई मैं अपनी वीडियो ही बनाई जा रही हूँ. बिकॉज मेरे भाई ने ना मेरे को पहले ही बोल दिया था कि राशि तेरा जो भी काम है ना वो तू निपटा के रख लियो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारे मेहमान आ रहे हैं और तू अपने में ही लगी हुई है. बिकॉज मेरा जो काम है ना भाई वो इट्स अ नॉन स्टॉप वर्क. लाइक मैं कभी भी एडिट करने बैठ रही हूँ, कभी मैं फोन में लगी हुई हूँ. उसने मेरे को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि भाई जो भी तेरा है ना तू पहले निपटा लियो, और ऐसे जब मेन टाइम आएगा ना तो तू अपने में मत लगी रहना, और भी चीजों पे ध्यान देना. विच इज करेक्ट, लाइक ऑब्वियसली. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट वेडिंग व्लॉग्स एज ए लॉन्ग फॉर्म, बट आई विल ट्राई एंड शॉर्ट्स तो मैं बनाऊंगी 110%.
Are you seeing someone? Are you dating someone? Will you do love marriage or arranged marriage? See, everyone has a personal life and a professional life, and मुझे personally ऐसा लगता है कि मैं इतनी खुली नहीं हूँ अभी ऐसे सोशल मीडिया पे कि मैं सब कुछ शेयर कर दूँ एकदम से. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी that I am seeing someone or I am not. But when the time will come, you will eventually get to know everything, because obviously if I have put my life on social media, there will come a time that I will share all of these things as well. But I don't want to discuss all of these things as of now. Just want to ask, how is Ahmedabad's corporate life? I'm so confused as a fresher between NCR और Ahmedabad. See, अगर आप NCR की बात कर रहे हो और अहमदाबाद को कंपेयर कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग सेफ्टी. अहमदाबाद इज वेरी सेफ. लाइक देयर नथिंग कम्स क्लोज to safety when it comes to Ahmedabad. I have lived there and I felt very safe, and NCR में I cannot relate to that safety factor because नहीं है safe, वो सबको पता है. So मैंने अहमदाबाद में क्या notice करा है, the corporate culture is there, but उसमें ना ऐसा अपनापन थोड़ा ज़्यादा है. You know, it's like proper जैसे corporate होता है ना, अपने काम से काम रखना, वो थोड़ा लैग करता है. एंड थोड़ा ऐसा अपनापन ज़्यादा, ये वो फैमिली ऐसा सब ज़्यादा है. ठीक है, तो वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई अहमदाबाद में ही है, बिकॉज ऐसे बाहर के शहरों में ऐसा नहीं होता. सो देयर इज वन प्रो एंड वन कॉन. ओके, मूविंग ऑन टू फ्यू क्वेश्चंस जो कि लास्ट के हैं, एंड माय मेकअप इज आल्सो डन. So I'm gonna take one last question, okay? What do you like to do on your free time? By the way, I love your content so much. This is from Somalia. I hope I'm pronouncing your name correctly. Hi. फ्री टाइम अगर मेरे पे है तो सबसे पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ सोना, बिकॉज हमेशा मुझे लैक ऑफ नींद रहता ही है. सेकंड थिंग, इफ आई एम फ्री एंड आई एम रिलैक्स्ड एट होम, आई लव टू वॉच समथिंग. मैं कोई सीरीज वगैरह देखती हूँ, सो आई मेक अ नाइस बोल ऑफ मैगी, या फिर मैं पॉपकॉर्न वगैरह बना लेती हूँ, and then I like to watch that. That's one of my top tier things. मैं अकेले कितना भी देख सकती हूँ वो. So yeah, with that, I hope I was as honest as I could be with all of those questions. I hope you enjoyed watching this video. If you did that, don't forget to give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already, and follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. And जो भी products मैंने use करे हैं सब आपको नीचे link मिलेंगे. So please do check them out as well. And yeah, with that, I'll be finishing off this video. I'll see you next time. Till then, bye bye. Toodles.